Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. I will explain you the concept of limit x tends to a fx is equal to l और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. Suppose let us do a quick revision of what we have done. So अगर let limit x tends to a fx is equal to L is given. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि as x approaches nearer to a, as x approaches nearer to a, मतलब x but not equal to a, then function fx goes nearer, approaches nearer to L, जहां पे L एक रियल नंबर है, L goes to R. और इसको हम कैसे लिखेंगे? as x approaches nearer to a, उसका मतलब हम लिखेंगे as x tends to a, मतलब x approaches a, then fx as x goes nearer to a, मतलब as x tends to a, ऐसा से बोलेंगे, then fx tends या goes nearer to L, तो उसको हम बताएंगे fx tends to L. इसका मतलब क्या कि as x tends to a, as x approaches a, x tends to a, तब x is not equal to a, then fx किसको अप्रोच करेगा? fx tends to L. ठीक है, अब आपको पता है कि x is not equal to a agreed, x is not equal to a agreed, तो इसके लिए a के लिए ओपन सर्कल पर x a को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट साइड और x a को अप्रोच कर सकता है x अप्रोचिंग a के लिए. दो टाइप के अप्रोच होते हैं, x कैन अप्रोच a फ्रॉम लेफ्ट तो वो होगा x टेंड्स टू a माइनस, वो अप्रोच है x टेंड्स टू a माइनस, और दूसरा x कैन अप्रोच a फ्रॉम राइट. ओके बेटा रहेगा x can approach a from left and x can approach a from right. x approaching a from left को हम बताते हैं x tends to a minus और इस रीजन में x is greater a होगा, and x approaching a from right को हम बताते हैं x tends to a plus और उस रीजन में x is greater than a होता है. वो आप समझ में गए. अब उसका मतलब कि x for x approaching a, x can approach a from left as well as right. तो वो जो लिमिट x tends to a fx equal to L दिया है, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी. दिस मींस for x tends to a, ओके वो नहीं लिखते हैं. दिस मींस as x approaches, इसका मतलब क्या, हम क्या कह सकते हैं कि as x approaches a from left, then fx किसको अप्रोच करेगा? L को ही अप्रोच करेगा. then fx approaches L. उसका मतलब therefore as x tends to, क्या मिलेगा? as x tends to a minus, जब x is less than a, then fx tends to L, then fx tends to L. कैसे लिखेंगे? as therefore as x tends to a minus, x is less than a, then fx tends to L. और L हो जाएगा approaching number of fx. जब x approach करेगा a को from left तो हम इसको क्या करेंगे? x approaches a from left तब fx किसको अप्रोच करता है? L को. तो वो जो L है वो हो जाएगी लिमिट ऑफ fx L और उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L दिया हुआ है, what we will get limit x tends to a minus, therefore we will get limit x tends to a minus fx इक्वल टू L. और इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? इस लिमिट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. It's better you write left hand limit of fx, left hand limit of fx. Okay.
अब सेकंड केस क्या था कि x a को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम राइट, x a को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम राइट, मैं चीज मैं इधर लिख देता हूं। सो as x approaches a from right side of a, x understood, x is greater than a, तब then also fx approaches L only, approaches real number L। इसका मतलब कि जब x, therefore as x tends to a plus, मतलब x जब a को अप्रोच करता है from right, मतलब x is greater than a, then fx is approaching this real number, it is approaching L only। इसका मतलब x का a की तरफ राइट साइड अप्रोच होता है तब fx अपने आप को कहां पे लिमिट करता है L को, तो उसका मतलब क्या था as x approaches a from right when x is greater than a, then fx tends to L। ये आपको पता चल गया। और इस चीज को हम लिमिट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब L is the approaching number of fx, जब x अप्रोच करता है a को फ्रॉम राइट, तो उसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं लिमिट x tends to a plus fx is equal to L। और इस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx। परफेक्ट। इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx। ओके, अब तो आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L के टाइम पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, नाउ आई विल नॉट रिपीट ऑल द पॉइंट्स, देयरफॉर लिमिट x tends to a, fx is equal to L, suppose it is given, so what we can write, we can write all the given things which I am writing right now। इसका मतलब कि as x approaches a, as x tends to a, x is not equal to a, fx tends to L, मतलब fx approaches a whole equal to L। उसका मतलब as x approaches a from left, मतलब as x tends to a minus, मतलब x is less than a, तब भी fx किसको अप्रोच करेगा, L को भी। फिर as x approaches a from right nearer to a but greater than a, तब भी fx किसको अप्रोच करेगा, L को ही अप्रोच करेगा। दूसरा कि for x tends to a the function is defined here, x is a variable, तो मैं लिख देता हूं, एंड में लिखूंगा मैं। और फिर इसका मतलब क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू L, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx। दूसरा क्या था कि इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट, लिमिट x tends to a plus fx is equal to L। This one suggests that right hand limit exists, right? Limit x tends to a plus fx is equal to L, right hand limit of fx equal to मत लिखो, लिखो तो भी चलता है। और हम क्या कह सकते हैं, means if this is given, all these things can be said, all these hold simultaneously, so we can say left hand limit exists, means limit x tends to a minus fx exists, limit x tends to a plus fx exists, LHL left hand limit, RHL right hand limit exists, and both are equal। Finished। मतलब अगर एक this thing is given, इसका ये मतलब है मैथमेटिकल। Am I clear? अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी वो मैं फटाफट लिख देता हूँ। For या मैं नोट लिखता हूँ कि in limit x tends to a, fx is equal to L, x is variable, x is the variable, x is variable and a is constant, and a is constant। It's obviously fx is function a x, fx is function a x, and a is constant, and okay, comma a is constant, comma
fx is function in x and L is a real number. Finished. दूसरा, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी वो अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप रिकॉल कर सकते हो। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी वो मैं आपको समझाता हूं कि फॉर लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? फॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx टू एग्जिस्ट, या लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट if following conditions are satisfied simultaneously. What is the meaning of simultaneously? मतलब सारी satisfy करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? मतलब एंड आए। Okay, for x tends to a, function fx must exist या must be defined. अगर function fx x tends to में function defined नहीं है तो मैं लिखूंगा limit does not exist. fx must be defined. ये तो डिफाइन होना ही चाहिए एंड मतलब सारे साइमल्टेनियस लिखा है। फिर क्या होना चाहिए कि for x tends to a minus fx tends to a, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट x tends to a minus fx बाद में लिख दो must exist, लेफ्ट हैंड लिमिट must exist। फिर आप लिखो राइट हैंड लिमिट must exist, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट must exist, right hand limit must exist and both must be equal. That is left hand limit must exist. ये वर्ड्स में आप याद रखोगे तो इजी रहेगा। थर्ड कंडीशन ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, उसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a plus fx मस्ट एग्जिस्ट और इस लिमिट को क्या बोलते हैं? दैट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। सी अगर आपने पहला राउंड अच्छे तरीके से किया है, इफ यू हैव डन द फर्स्ट थिंग परफेक्टली, देन डेफिनेटली दूसरी बार जब आप करोगे तो बहुत फटाफट आप कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड बोथ मस्ट बी इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड बोथ मस्ट बी इक्वल। उसका मतलब क्या? दैट इज left hand limit must be equal to right hand limit. Perfect. Okay, of fx. अब दूसरी चीज क्या है? ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? This limit does not exist. Sometimes say in many references D and E लिखेंगे। D and E मतलब does not exist. तो limit x tends to a fx does not exist if any one of the following conditions occur. If any one of the following conditions occur. हाँ क्या आएगा? सोचो, यहाँ पे और में आएगा। पहला चीज क्या होना चाहिए? x tends to a के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। दूसरा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा क्या आएगा? और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और चौथा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट केस क्या? फॉर x tends to a where x is not equal to a, fx is not defined. Second और में जाएगा और क्या लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a minus fx डज नॉट एग्जिस्ट। उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और में क्या आएगा कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और में क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई एम राइटिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें मैं और भी लिखा है। थर्ड कंडीशन के लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट fx डज
नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट बोथ आर नॉट इक्वल। और क्या है, फोर्थ, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन या कंडीशन होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। मैं सम्स करूंगा तब आपको अच्छे तरीके से ये परफेक्टली रिकॉल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट बोथ आर नॉट इक्वल। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx exists, right hand limit, both right hand limit of fx exists, but both are not equal. Simple, easily done. Okay, so ये पहला हो गया। Now the next one. Okay, तो ये हमारा theoretical portion हो गया। Now मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। Find limit x tends to by trial and error method। वो करें उसके पहले मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। ओके, continuity of a function। Suppose I want to define the continuity of a function। Okay, let me give you an example only। Find limit x tends to -1, find limit x tends to -1। क्वेश्चन है find limit x tends to -1 x plus। अगर आप कंपेयर करो limit x tends to a fx, limit x tends to a fx, तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, -1, और fx की जगह पे क्या दिख रहा है, x plus 3। मतलब यहाँ पे x -1 के पास जाएगा तो x plus 3 इसके पास जाएगा। Find limit x tends to -1 x plus 3 by trial and error method। ऐसा क्वेश्चन है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। ओके, हियर दैट इज हमको क्या ढूंढना है, लिमिट x tends to -1 x plus 3 is equal to question mark। अगर आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग लिमिट x tends to -1 x plus 3 with limit x tends to a fx, आपको a क्या मिलेगा, a आपको मिलेगा a is -1 and fx is x plus 3। अब करेक्ट कर पाओगे इसलिए के साथ। Here we have to find, here we have as x variable x approaches -1, as x goes nearer, I will give very simple words, goes nearer to -1, then fx equal to x plus 3 goes nearer to which real number? That is my question. Now here x tends to क्या? Here x tends to क्या है, -1, so x cannot be -1। तो उसका मतलब x can approach -1 from left, so x tends to -1 minus, जब x will be less than -1, और x tends to क्या होगा, ये हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, और x इसको अप्रोच कर सकता है, x can approach -1 from right, पर तब x is greater than -1 होगा। ये आप समझ गए। अब आपको पता है कि मैं x के कुछ वैल्यूज रखूंगा nearer to -1, और वो वैल्यूज कैसे होंगे, from left side I'll approach and right side and left side I'll approach। पिछले टाइम हमने x tends to a तब पॉजिटिव नंबर रखा था, इधर मैंने x tends to -1 मतलब नेगेटिव नंबर रखा है। ओके, राइट, दिस इज आवर नंबर लाइन। x इसको अप्रोच कर रहा है -1, so x cannot be equal to -1, so open circle। अब कुछ वैल्यूज कंसीडर करते हैं। x can approach a,
can approach -1. Okay, here x is approaching -1. So since x is approaching -1, so open circle, x can approach -1 from right and x can approach -1 from left. ठीक है, इस अप्रोच को हम क्या लिखेंगे, x tends to -1 माइनस, और इस अप्रोच को क्या रखेंगे, x tends to -1 प्लस। और आप -1 को अप्रोच कर रहे हैं, -1 के लेफ्ट में -2 आता है और राइट में 0 आता है नियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज आई गो विद द वैल्यू -1.1 -1.05 and -1.0. Let us take such kind of values. Or -1 I want to approach from the right side, so let me go with -0.9, -0.95 and -0.9. Try to understand the way I am doing it. First case, x approaches, okay, x, और अब x tends to -1, माइनस में x will be less than -1. इस केस में x approaches -1 from left, so x is less than -1, and in this case x is approaching -1 from right, but x has to be greater than -1. Be very very careful. X approaches -1 from left, तो इसका मतलब रोटेशन क्या होगा, x tends to -1 माइनस, और हाँ x is less than -1 but nearer to -1. पहला वैल्यू हम क्या रखेंगे, x का -1.1, और वो x प्लस 3 का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1.1, पहला वैल्यू x का -1.1 रखा, तो x प्लस 3 क्या होगा, -1.1 प्लस 3 कितना आएगा, -1.1 प्लस 3 1.9, फिर आप -1.05 रखो, फिर आप -1.01 रखना, और चेक करो कि x प्लस 3 का वैल्यू, fx जो x प्लस 3 है उसका वैल्यू क्या होता है। fx जो है, see you can write fx is equal to x plus 3, then it is fine। अगर आपको रखना है fx जो है फंक्शन इन x plus 3, -1.1 प्लस 3 कितना आएगा, 1.9, फिर सेकंड वैल्यू है -1.05, x का वैल्यू -1.05, तो कंपेयर करके x plus 3 था, तो x plus 3 x की जगह पे -1.05 प्लस 3 रखो, कितना आएगा, 2.95, 3 -1.05 will be 1.95। मतलब आप देखो 1.9 के बाद 1.95 2 के पास जा रहा है, फिर मैं रखता हूं x को -1, फिर मैं x को रखता हूं -1.01, तो तब x plus 3 मतलब fx जो है x plus 3 -1.01 प्लस 3 वो कितना आएगा, 1.99, 3 minus 1.01, yes 1.99 आता है। मतलब ये किसके पास जा रहा है, as x, as अगर आप x को -1.000001 रखोगे तब x plus 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1.9999, किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, 2 नहीं हो रहा है, so as x approaches and tends to -1 from left, x tends to -1 minus x less than -1, x plus 3 approaches, then okay I will not write fx, then x plus 3 इसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, उसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं लिमिट x tends to, मतलब x ने -1 को अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, x tends to मतलब लिमिट x tends to -1 माइनस, तो x plus 3, दिस लिमिट x tends to -1 माइनस x plus 3 कितना आएगा, 2, और हम इस लिमिट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x -1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, x अप्रोच कर रहा है, therefore x approaching -1 from left, x plus 3 goes nearer, approaches which number, 2,
दैट अप्रोचिंग नंबर को हम लिमिट बोलते हैं, इसलिए द लिमिट लिखा और फिर इक्वल टू हो गया 2 और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? यस, परफेक्ट। सो ये वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। x as x approaches -1 from left, fx equal to x plus 3, that is okay, as x approaches -1 from left, that is x tends to -1 minus x is less than -1, fx approaches मतलब वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। फिर सेकंड केस करेंगे तो आप लोग कह सकते हो that fx approaches या goes nearer, then fx is equal to x plus 3 goes nearer या goes nearer to 2, that is x plus 3 ही लिखता हूं tends to 2। अब सेकंड केस क्या था? सेकंड केस x approaches -1 from right, x approaches -1 from right, तो उसका मतलब x tends to क्या होगा? x tends to क्या होगा? हम क्या करेंगे? therefore we will write x tends to -1 plus, और कब x is greater than -1 होता है? अब फर्स्ट केस x का वैल्यू क्या रखें? कुछ स्टूडेंट्स -0.9 ऐसे जाएंगे, ऐसे थोड़ी अप्रोच कर रहा है, ऐसे आएंगे। सबसे पहले -0.9 x को रखो -0.9, तो तब fx जो था x plus 3 वो आएगा -0.9 plus 3 कितना आएगा? 2.1। फिर आप वैल्यू रखो -0.95 फिर -0.99। मैंने यहाँ नेगेटिव भी क्यों समझाया? कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि -1 मतलब नेगेटिव और -1 प्लस मतलब पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है। आप समझ जाओ, मैं एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूं। I am giving you examples so that you can understand all the doubts will be clear। ये मेरे एग्जांपल में कि x tends to -1 माइनस मतलब लेस देन -1 नेगेटिव ही होगा, x tends to -1 प्लस मतलब ग्रेटर देन -1 नेगेटिव भी होगा। ऐसा नहीं है -1 प्लस मतलब पॉजिटिव हो तो -1 माइनस मतलब नेगेटिव हो तो। ओके, सो सेकंड केस क्या था हमने? वैल्यू कितनी आएगी? x is equal to -0.95, therefore fx जो था x plus 3 कितना आएगा? -0.95 plus 3 कितना आएगा? 2.05। just confirm 2 minus 0.95, yes sorry 3 minus 0.95 कितना आएगा? 2.05 और x को आप रखो -0.99, तो तब fx जो है x plus 3 मतलब x plus 3 ही -0.99 plus 3 कितना आएगा? 2.01। 3 minus 0.99, yes 2.01। तो अगर आप x को सोचो -0.9999 वेरी नियर टू -1 यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? -0.999999, तो x plus 3 क्या हो जाएगा? 2.00001 मतलब नियर टू 1 2। so as x approaches -1 from right, क्या था? from right, x plus 3, ठीक है मैं नहीं लिख रहा हूँ fx, आप समझिए x plus 3 approaches nearer to या understood approaches goes nearer to 2, क्योंकि पहला है 2.1 2.05 2.01 और अगर आप और रखोगे -0.99 तो हो जाएगा 2.0001, तो उसका मतलब है I can write as x tends to -1 from right, as x approaches -1 from right, x tends to -1 plus, पर हाँ x is greater than -1, x plus 3 goes nearer मतलब tends to 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x approaches -1 from right, x tends to -1 plus x plus 3 कौन से नंबर को अप्रोच करता है? 2 को, तो वो 2 है उसका लिमिट, इसलिए हम इक्वल टू 2 करेंगे। x plus 3 2 नहीं है, लिमिटिंग नंबर, और इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ये है राइट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। तो हमने क्या ढूंढा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, यस, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, यस, एंड बोथ आर
इसका मतलब दोनों केस हो गए। तो हमने क्या बताया कि so therefore for x tends to -1 minus x plus 3 tends to क्या था 2। therefore for x tends to -1 plus राइट साइड की अप्रोच मेरी ओके x plus 3 tends to 2 और इसमें both the things I am now combining। so हमको क्या मिला? तो we obtained 4 points कि when x approaches -1 from left, when x is less than -1, x plus 3 approaches to 2। x ने अप्रोच किया -1 को राइट साइड से, पर x का वैल्यू -1 से बड़ा था, तो उस केस में भी x plus 3 किसको अप्रोच किया 2 को। तो लेफ्ट हैंड अप्रोच के लिए अप्रोच नंबर 2 मिला x plus 3 का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी? x plus 3 का अप्रोचिंग नंबर क्या है 2। जब x अप्रोच करता है -1 को लेफ्ट साइड से, सो दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं क्या लिखता हूं therefore डबल इंप्लीकेशन ऐसा लिमिट therefore और therefore limit x tends to -1 minus x plus 3 क्या मिला 2। और ये क्या थी? लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x plus 3। ओके नाउ इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x tends to -1 plus x plus 3 वो भी क्या है 2, और उसको हम क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। आगे चल राइट हैंड लिमिट व्हाट यू डू इज दैट ऑफ fx मत लिखो, आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट and make it a point that you are writing LHL just for your understand, don't write in exam LHL RHL, the teacher will give you wrong। और यहाँ पे दोनों लिमिट कैसी हैं? LHL exists, yes, RHL exists, yes, and both are equal। therefore limit x tends to -1 minus fx exists, limit x tends to -1 plus fx है x plus 3 का fx लिख रहा हूँ x plus 3 exists, x plus 3 exists, both are equal to how much 2। मतलब दोनों अप्रोच में लेफ्ट साइड अप्रोच किया या राइट साइड अप्रोच किया, हमको x plus 3 अप्रोचिंग क्या मिला? हमको x plus 3 अप्रोचिंग यूनिक नंबर 2 मिला। उसका मतलब हम क्या कह सकते हैं और x tends to -1 minus जब x is less than -1 and x tends to -1 plus जब x is greater than -1, दोनों केस में x plus 3 किसको अप्रोच करता है 2 को। तो हम क्या कह सकते हैं therefore ये दोनों अप्रोच को मैं क्लब कर दूं, मतलब x अप्रोच करता है -1 को, x अप्रोच करता है -1 को फ्रॉम लेफ्ट और राइट। हां एग्री, x मैंने -1 इक्वल टू नहीं रखा था, तब x plus 3 किसको अप्रोच करता है 2। तो क्या लिख सकते हैं therefore हमारा यही तो क्वेश्चन था कि लिमिट x tends to -1 whether from left or right, x plus 3 इसको अप्रोच करता है 2। Did you understand? x therefore x approaches -1 from left or right, x is not equal to -1, तब x plus 3 किसके पास जाता है 2, तो 2 हो जाएगा x plus 3 का लिमिट। द लिमिट इतने पर इक्वल टू कर दिया, सिंपल इजी अंडरस्टूड। ओके नाउ दैट फिनिशेस। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने x tends to a नेगेटिव रखा, ओके कुछ लोग तो 0 पर भी डाउन होता है, फाइन। और हाँ ये लिमिट अगर डायरेक्टली मुझे निकालनी होती, अगर ये लिमिट मुझे डायरेक्टली निकालनी होती, लिमिट x tends to -1 x plus 3, x plus का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसके अंदर -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका लॉजिक में बाद में आपको समझाऊंगा। सो -1 plus 3 कितना आ रहा है, हम एग्जाम्स में ऐसा करेंगे और क्या लिखेंगे बाद में, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्वेश्चंस विल बी समवॉट ट्रिकी बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी डन। अब
थोड़ा स्पीडी एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू, मैं 0 रखता हूं और सिंपल एक क्वेश्चन रखता हूं x प्लस 1, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मतलब x इसके पास जा रहा है 0, तो मतलब x जिस नंबर को अप्रोच करें वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हियर दैट इज हमको क्या ढूंढना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 1 is equal to question mark. Okay, that is as x goes nearer, as x approaches 0, as x approaches 0, but x not equal to 0, x plus 1 approaches which unique real number, ठीक है, ये हमको ढूंढना है। दिस हैज टू बी फाउंड आउट। तो कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे, हियर x टेंड्स टू 0 है, सिंस x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0 प्लस हो सकता है और x टेंड्स टू 0 माइनस हो सकता है। आप वैल्यू रख के फटाफट ऑब्टेन कर दो। आपके बच्चे इधर दे लाइक लेजी एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे। फॉर हियर यहां पे है x approaching 0, तो x cannot be 0, so therefore x can approach 0 from left when x will be less than 0, or x can approach 0 from right but x will be nearer to 0 but greater than 0. So this is our number line. When x is approaching 0, not equal to 0, so open circle. Now x can approach 0 from right, तो उसको मैं लिखूंगा x tends to 0 plus x is greater than 0, okay, and x can approach 0 from left, तो वो मैं लिख सकता हूं x tends to 0 minus, और हाँ उस केस में x will be less than 0. Now select few values, तो 0 plus में right side of 0 positive numbers आएंगे. Suppose I go with one number over here 0.1, 0.1, फिर आप सोचो 0.05 और फिर सोचो 0.01, और यहाँ पे आप सोचो नेगेटिव नंबर आएगा, तो सपोज आई कीप एज माइनस 0.1 माइनस 0.5 एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0.1 माइनस 0.05, और यहाँ पे एक नंबर आप अगर कंसीडर करोगे तो माइनस 0.01. Did you get it? Okay. First case, x approaches. इस बार मैं राइट साइड एरो देता हूँ. x approaches 0 from right. तो इसका मतलब x tends to 0 plus, but x will be greater than 0. 0 plus का मतलब क्या? It will be positive number. It will be positive number. It will be positive number. मतलब right. तो पहला वैल्यू क्या रखोगे? पहला वैल्यू आप क्या रखोगे? हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 1 x plus 1. हाँ, तो पहला वैल्यू आप क्या रखोगे? पहला वैल्यू x is 0.1. So therefore x plus 1 कितना हो गया? 0.1 plus 1 1.1. फिर x को आप रखो 0.05, तो x plus 1 क्या आएगा? 0.05 plus 1 1.05. 1.05 1 के पास जा रहा है. x को आप रखो 0.01, तो x plus 1 0.01 plus 1 1.01. तो अगर x 0.00001, अगर यहाँ पे एक नंबर आप रखते हो very near to 0 on the right side, तो 0.00001, तो x plus 1 क्या हो जाएगा? 1.00001. तो उसका मतलब as x approaches, as x, therefore as x approaches, therefore as x, what I got? Therefore as x approaches 0 from right, x plus 1 goes nearer to unique real number, goes nearer to 1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Therefore as
0, x plus 1 टेंड्स टू इसके पास जाता है 1, तो उसको हम लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x plus 1 is 1। सी ये जितनी बार आप लिखोगे उतना आपको मास्टरी आएगा। डोंट बी लेजी। हमको यहाँ पे 4 या 5 बार कुछ ज्यादा सम नहीं करने हैं। एक्सरसाइज के सम बहुत इजी है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? Therefore लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x plus 1 कितना आया? 1। और इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। ओके, और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे? RHS। ओके, और सेकंड केस x approaches 0 from left, you know, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे? x tends to 0 minus x is less than 0। हाँ, 0 minus का मतलब क्या? x tends to 0 minus का मतलब क्या? x will be less than 0 but nearer to 0, मतलब x is negative होगा। तो x का वैल्यू क्या है? -0.1, फिर -0.1, फिर -0.01। यहाँ पे -0.1 minus 0.1, तो ये कितना आएगा? x plus 1। Therefore x plus 1 is minus 0.1 plus 1 minus 0.1 plus 1 कितना आएगा? 0.9। फिर x का वैल्यू क्या रखा था? -0.05, तो x plus 1 क्या हो जाएगा? Therefore x plus 1 हो जाएगा -0.05 plus 1 मतलब 0.95। और लास्ट में मैंने वैल्यू रखा था -0.01, तो ये कितना हो जाएगा? x plus 1 का। Therefore x plus 1 will be -0.01 plus 1 को आएगा 0.9। चेक करो 0.9, 0.95, 0.99। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे मैं रखता हूँ -0.0000001, तो x plus 1 क्या हो जाएगा? 0.999999। As x approaches 0 from left, x plus 1 goes nearer to 1 only. So as x tends to, हम क्या लिखेंगे? As x tends to 0 minus 2, which is equal, आप समझ गए? Therefore as x tends to 0 minus, और हाँ x is less than 0, तो क्या हो जाएगा? Therefore as x tends to 0 minus, और x is less than 0, x plus 1 goes nearer to 1 only। तो इसको हम लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लिमिट x tends to 0 minus x plus 1 is 1 only। तो लिमिट x tends to 0 minus x plus 1 is 1, और इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या याद रखेंगे? LHL। क्या याद रखेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अंडरस्टूड? LHL means लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL means राइट हैंड लिमिट। मतलब दोनों अप्रोच, यहाँ पे x ने अप्रोच किया लेफ्ट या राइट से, दोनों तरीकों में मुझे क्या मिला? As x approaches 0 from left or right, okay, ऐसा नहीं लिखना है। That part is clear। तो दोनों चीजों में हमको मिल गया। So what we can say, yes, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट exists, yes, right hand limit exists, and both are equal. So for x approaching 0 from left or x approaching 0 from right, x plus 1 approaches 1 only। तो उसका मतलब दोनों केस, मतलब जब x ने 0 को अप्रोच किया but x not equal to 0, are you understanding? x approaching 0 from left और x approaching 0 from right, दोनों केस में x plus 1 approaches 1 and दोनों केस में। तो दोनों केस में मतलब कर दिया, मतलब x approaching 0, तब x plus 1 ने इसको अप्रोच किया यूनिट नंबर 1। So what I can say by definition, trial and error, limit x tends to क्या? Limit x tends to 0, x plus 1 is simple। इतना आपको याद रखना है। और लिमिट x टेंड्स टू
0, x plus 1 is 1, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ लिमिट आर इक्वल। वो ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, तो वो अब लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने तो क्वेश्चन निकाला, तो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, x plus 1 is 1, फिनिश, अंडरस्टूड। अभी मैं अलग से नहीं बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है, बोथ आर इक्वल, हम जैसे डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। अब सपोज ये लिमिट मुझे डायरेक्टली निकालनी हो, तो L में लिखता, लिमिट के सारे क्वेश्चंस को हम L लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x plus 1, x plus 1 upon 1 है, तो x की जगह 0 रखने पर 0 plus 1 मिलता है, मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है। जब x की जगह मैं 0 इसमें रखता हूं, तो वो कर देने का वो मेथड है लिमिट ढूंढने की, डायरेक्ट सिंपल ऐसे लिखवाना है, ट्रायल एरर से करने की जरूरत नहीं है। So that you understood, okay? So that part is clear. So now, अब हम लोग थोड़ी और चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जस्ट ओके। सो नाउ आपको अब ये ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ऐसा नहीं होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब नेगेटिव। आपको सारे क्लियर डाउट्स हो गए होंगे कि x टेंड्स टू a माइनस क्या, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सारे समझा दिए हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो अब आपको वो चीजें याद रखनी है, तो वो फटाफट लिख देते हैं कि सपोज अ फंक्शन f, suppose a function f is defined on some interval not containing a, ठीक है? Let and we are given limit x tends to a, fx equal to L, this is given। तो इसका मतलब क्या था? डबल इंप्लीकेशन, एवरीथिंग which we can say is कि as वर्ड्स में क्या लिखेंगे, as x goes nearer to a, x is not equal to a, fx goes nearer to L where L is a real number। इसको हम लिख सकते हैं कि as x tends to a, fx tends to L, और इसको दोनों वर्ड्स as x goes nearer to a और x tends to a, पर x is not equal to a, fx tends to L, या fx approaches L, fx goes nearer to L, तीनों क्लियर हो गए। और दूसरा for x tends to a, for x going nearer to a, we can have x can approach a from left, x approaches a from left, x tends to a minus when x is less than a, and x tends to a का दोनों चीजें होंगी, ओके? तो वो चीज अगर आप बता दो, are you understanding? This is given, मतलब L is the limit of fx for x tends to a। L को बोलेंगे L है approaching number, L is the approaching number है, fx approaches L when x approaches L, when x approaches a, fx goes nearer to L when x goes nearer to a। उसका मतलब L is the limit of fx for x tends to a, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके? उसका मतलब x going nearer to a, तो x tends to a दोनों चीजें हो गई। तो इसका मतलब जब ये लिमिट हम क्या बोलेंगे, x goes nearer to a, fx tends to a, L होता है, और इस चीज को अगर मुझे बताना है तो हम कैसे बताएंगे? x इसको अप्रोच कर रहा है, देखो, but not equal to a, इसलिए ओपन सर्कल, और हाँ x approaches a from left, तो क्या लिखेंगे, x tends to a minus but x is less than a, and x can approach a from right also, तो वो मैं लिखूंगा x tends to a plus but x is nearer to a,
और हाँ अंडरस्टूड। और इसमें क्या होता है कि when x goes nearer to a from left then also fx goes nearer to L, उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx अंडरस्टूड, बाद में लिख दो LHL। और दूसरा ये x जब a को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट, मतलब x goes nearer to a from right, तब भी fx l के पास ही जाएगा। मतलब x a को अप्रोच करे किसी भी साइड से, fx को l को ही अप्रोच करने वाला है। उसका मतलब ये कैन आल्सो से as x tends to a plus when x is greater than a, fx इसको अप्रोच करने वाला है, l को भी अप्रोच करने वाला है। उसका मतलब क्या, लिमिट x tends to a plus मतलब राइट हैंड लिमिट is l, और राइट हैंड लिमिट को मैं क्या बोलने वाला हूं शॉर्ट फॉर्म में LHL नहीं RHL। और इधर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, LHL एग्जिस्ट, RHL एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। यस और नो? यस यस। लेट मी राइट, इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट and both are equal to simple clear। अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन नोटेशंस में। अब NCERT टेक्स्ट में एक कांसेप्ट नहीं दिया है, and suppose they have given, they have not defined in a very nice way। So here is the topic, continuity at x is equal to a, continuity at x is equal to a, continuity at x is equal to a। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, suppose a function f लिमिट के टाइम पे x नॉट इक्वल टू a हो, पर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a पॉसिबल होना चाहिए। सपोज फंक्शन f is defined, suppose function f is defined on some interval containing a, मतलब उस इंटरवल में इक्वल टू a, ग्रेटर देन a भी पॉसिबल होना चाहिए, लेस देन a भी पॉसिबल होना चाहिए और इक्वल टू a भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम what is the definition of continuity at x is equal to, what is the definition of continuity at x is equal to a? उसका मतलब continuity at x is equal to a, उसमें क्या लिखूंगा कि suppose function f is defined on some interval containing a, if पहले तो अराउंड a के आसपास x नॉट इक्वल टू a, for x tends to a, मतलब अराउंड a लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट करना चाहिए, और at a f of a भी होना चाहिए, is equal f of a भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल है, if लिमिट x tends to a, मैंने क्या बोला, लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट करना चाहिए, f of a एग्जिस्ट करना चाहिए, x नॉट इक्वल टू a के लिए मुझे लिमिट मिलेगा, x इक्वल टू a पे मुझे f of a मिलेगा। और अगर ये दोनों इक्वल है, if limit x tends to a fx is equal to f of a, then we say f is continuous at x is equal to a, then we say f is continuous at x is equal to a। if limit x tends to a fx is equal to f of a, then we say that f is said to be, then f is said to be continuous at x is equal to, एक बार वापस लिखो, मतलब इक्वल टू a पे f of a मिलना चाहिए और नॉट इक्वल टू a, नियर टू a के लिए लिमिट x tends to a fx मिलना चाहिए। मतलब क्या, that is if limit x tends to a fx is equal to f of a, then f is said to be continuous, then f is said to be continuous at x is equal to a। See, sometimes
in some schools they ask one part definition to define continuity at x is equal to a. ये एमसीक्यू में से पूछेंगे if limit x tends to fx is equal to f then dash ऑप्शन में कुछ अलग होगा, आपको सिलेक्ट करना है f is continuous at x is equal to a. ठीक है, अब आप जरा समझो क्या है ना, Okay. Suppose it is given f is continuous at x is equal to a. This is given. f is continuous at x is equal to a is given. उसका मतलब क्या कि for x not equal to a, मतलब x approaching a, x not equal to a, limit x tends to a fx exists, f is continuous at x equal to a is given. इसका मतलब क्या? उसका मतलब x not equal to a के लिए limit x tends to a fx मिलेगा, at x is equal to a f of a भी मिलेगा और दोनों इक्वल थे. आप समझ गए? f is continuous at x equal to a. Suppose it is given. तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि x not equal to a के लिए, x not equal to a के लिए limit x tends to a fx exist करेगा, at x is equal to a f of a exist करेगा और वो equal to a. ठीक है. दूसरा, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसका मतलब क्या? ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है. दूसरा क्या कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू, उसका मतलब f ऑफ a भी एग्जिस्ट करेगा और ये तीनों इक्वल होंगे. अंडरस्टूड और नॉट? f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a अगर है तो उसका मतलब लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट, f ऑफ a एग्जिस्ट, बोथ आर इक्वल. उसका मतलब LHL एग्जिस्ट, RHL एग्जिस्ट, f of a मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, दैट f of a आल्सो एग्जिस्ट और तीनों इक्वल है. ये आप याद रखो. See, this is the definition which you must understand. इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है सब्स के दौरान. It will take only 5 minutes to understand. ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है. एक बार वापस लिख दो कि f is continuous. Suppose this is given. f is continuous at x is equal to a. उसका मतलब क्या? उसका मतलब continuity at x is equal to a. उसका मतलब x is equal to a पे हमको फंक्शन का वैल्यू f of a मिलेगा और x not equal to a के लिए लिमिट x tends to a f of x मिलेगा. मतलब लिमिट x tends to a fx मैं ढूंढूंगा और f of a भी मैं ढूंढूंगा और दोनों इक्वल होंगे. अगर f is continuous at x equal to a तो लिमिट x tends to fx will be equal to f of a. और since the limit exists उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी x लेस देन a के लिए, x ग्रेटर देन a के लिए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एट x इज इक्वल टू a f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा और ये तीनों इक्वल होंगे. ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि जब f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. समझ गए? इतना याद रखना. f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. ये आप डेफिनेशन आपको याद हो गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए. अब आप ध्यान से मैं क्या ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूं. इफ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू क्या था? इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to f of a, then f is said to be continuous at x is equal to a. इतना आपको याद हो गया? और दूसरा डेफिनेशन क्या कि f is continuous at x is equal to a, then what I can say? Then I can say limit x tends to a f of x, limit of fx around a मतलब a के आसपास, so limit of fx around a is equal to f of. और एक्स्ट्रा थोड़ा अगर लिखना है याद रखने के लिए, कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट का नेचर भी चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट का नेचर भी चेक करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट अराउंड a मतलब लेस देन a के लिए, अराउंड a लेस देन a, अराउंड a ग्रेटर देन a के लिए राइट हैंड लिमिट दोनों को एग्जिस्ट करेगी. एट x इज इक्वल टू a f of a भी एग्जिस्ट करेगा.
दोनों इक्वल होगा। कितना हो गया डेफिनेशन ऑफ, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x = a और अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब पहले मैं अलजेब्रा ऑफ मतलब वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट्स लिख देता हूं जो बहुत इजी है, और फिर ये कंटिन्यूटी का कैसे एप्लीकेशन करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर सम्स बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, नाउ गिव द हेडिंग, गिव द heading के with the heading algebra of limits और working rule of limits, algebra of limits। You can write algebra or working rule of limits। First जो है वो है limit x tends to a f of x plus g of x। अगर limit x tends to f of x plus g of x है तो हम इंडिविजुअली लिमिट सप्लाई कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली लिमिट सप्लाई कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली लिमिट सप्लाई कर सकते हैं प्लस में और माइनस में, इनटू मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी हम सप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वर्किंग रूल्स। यू अंडरस्टैंड हाउ आई विल यूज वर्किंग रूल्स। सेकंड, अगर क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, उसका मतलब मैं इंडिविजुअली लिमिट दे सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। मतलब प्लस माइनस में हम इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हैं। इवन मल्टीप्लिकेशन लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू अगर gx है तो हम इंडिविजुअल लिमिट्स दे सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। हाँ, इट्स ऑब्वियस कि हम ऐसा इंडिविजुअल लिमिट कर सकते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू gx एग्जिस्ट करनी चाहिए। बाकी रूल्स क्लियर पहले थी कि प्लस माइनस या इनटू हो तब हम इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हैं। दो फंक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं तीन फंक्शन को। फिर फोर्थ, लिमिट अगर है x टेंड्स टू a fx अपॉन gx तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट इंडिविजुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x। और हाँ, इसमें इस टाइम पे हियर gx is not equal to 0 for x tends to a and ये लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, लिमिट x tends to a g of x is not equal to 0 for x tends to a। ठीक है, इतना आप समझ गए। मतलब हम इनटू अगर डिवीजन है तो हम ऐसे इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आप क्या करोगे, ये चारों वर्किंग रूल्स एक बार लिख लो, चारों वर्किंग रूल्स आप एक बार वापस लिख दो। ठीक है, सो राइट वर्किंग रूल्स। फर्स्ट, लिमिट देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, मैं इंडिविजुअल लिमिट दे सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। फिजिक्स में आप ऐसे करते होंगे काफी थियरी में और वो आपको हेल्प होगा। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। थर्ड रूल प्रोडक्ट में भी आप दे सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx into लिमिट x tends to a g of x। Okay, you write in brackets। और हाँ, here limit x tends to a fx and limit x tends to a gx both exist। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो
तो हम ऐसे वर्किंग रूल अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर डिवीजन वाला रूल अगेन, तो क्या आपको एक रिवीजन हो जाएगा, बराबर है। हर एक चीज दो बार लिखो तो बेटर रहता है। फोर्थ क्या था वर्किंग रूल, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे क्या था fx अपॉन gx, fx अपॉन gx। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअली वी कैन अप्लाई द लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x, सिंपल। और हाँ इधर क्या होता है कि g of x 0 नहीं होगा जब for x tends to a, आपको क्या याद रखना है कि for x tends to a, for here gx is not equal to 0 and limit x tends to a, g of x is not equal to 0 for x tends to a, मतलब x जब a को अप्रोच करेगा तब gx 0 नहीं होगा और ये लिमिट भी 0 नहीं होगी, एंड ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। एंड बोथ एग्जिस्ट, ये हो गए 4 वर्किंग रूल्स। अब और दो इंपॉर्टेंट हैं, और दो इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल्स हैं तो वो मैं अलग से लिखता हूं। मतलब वर्किंग रूल्स काफी उसमें दे यूज द वर्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड समटाइम्स दे यूज द वर्ड वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट। मैंने वो 3 एग्जांपल्स दिए थे ट्रायल और एरर से, क्यों? बिकॉज़ आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वैल्यू होती है, all the values are selected, okay। next for आपको पता है limit x tends to a fx equal to l, x is a variable, x is variable and a is constant, ये आपको पता है, and a is constant, obviously fx is function in x और l एक fixed real number होता है, that is understood। fx और l के बारे में हमको डिटेल में नहीं करना। अब जो दूसरा वर्किंग रूल है वो आपको ये याद रखना है, फिफ्थ वर्किंग रूल इज लिमिट x टेंड्स टू a k into fx, लिमिट x टेंड्स टू a k into fx, x वेरिएबल है तो बाकी के सारे डेटा कांस्टेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू a k into fx will be k is a constant, so k into क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx। काफी बार फिजिक्स में आपने देखा होगा x टेंड्स टू x वेरिएबल है तो k अगर कांस्टेंट है तो k लिमिट के बाहर निकल जाएगा। वापस एक बार लिखो, therefore that is limit x tends to a k times fx will be k outside into limit x tends to a fx, और हाँ here a is the constant, a is the constant, x वेरिएबल है तो a is constant, तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर निकल सकता है। आप खुद फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर लिमिट वाले क्वेश्चन आते होंगे तो वो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस में आपने देखा होगा कि काफी टाइम टेक्स्ट बुक में और टीचर्स वो कांस्टेंट बाहर निकालते होंगे। हियर k इज अ कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट एंड अंडरस्टूड, x इज अ वेरिएबल, a इज आल्सो कांस्टेंट। पर यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a k fx, k कांस्टेंट है, k बाहर निकल जाएगा, दैट इज अंडरस्टूड। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये फिफ्थ वर्किंग रूल हो गया। फिर सिक्स्थ वर्किंग रूल आपको यहाँ पे, और हाँ k इज अ कांस्टेंट मतलब यू कैन से k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर एंड प्रेफरेबली वी विल राइट नॉट इक्वल टू। सिक्स्थ वर्किंग रूल आपको याद रखना है, limit of a constant function, limit of a constant function is constant, okay। let me explain, limit x tends to a, limit x tends to a, suppose k है तो वेरिएबल कौन है x, कांस्टेंट a है तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, और अगर k कांस्टेंट है तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। आप याद कर सकते हो k is constant, k is fixed constant, okay, k is
constant. Okay, clear? That is, अगर ऐसा कुछ आता है लिमिट x टेंड्स टू a, तो x वेरिएबल है और यहाँ पे सपोज वो कांस्टेंट c है, तो हम लिख सकते हैं c, जहाँ पे c इज अ कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको वर्किंग रूल्स समझ में आ गए। आई बिलीव कोई अब उतना हाई फाई चीजें आपको नहीं लग रही होंगी ना। लेट अस डू, तो वर्किंग रूल्स आपको समझ में आ गए, वर्किंग रूल्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो आरबीओ में लिखा और पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। वर्किंग रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। एक डेफिनेशन जो हमने किया था वो था कि सपोज फंक्शन f कंटिन्यू, suppose function f is defined on some interval containing a, ठीक है। और डेफिनेशन क्या था, if limit x tends to a is equal to f of a, then f is said to be, then f is said to be continuous at x is equal to, and f is said to be continuous at x is equal to, ये हम करेंगे। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन f कंटिन्यूअस कब होगा, जरा सोचो और सोचो कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब नहीं होगा। सी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, और ये जो पॉइंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक में अच्छे तरीके से नहीं दिए हैं। फॉलो द वे आई एम डूइंग, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा वो जरा मुझे आपको बताना है। तो दिस पार्ट इज क्लियर, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a is said to be continuous at x is equal to a। फिर दूसरा क्या था, f is continuous, f is continuous at x is equal to a, हमने लिखा था f is continuous at x is equal to a। उसका मतलब हमने क्या, मैंने आपको समझाया था कि लिमिट x tends to a, limit x tends to a, fx must be equal to f of x, मतलब limit of fx around a must be equal to value of the function at x is equal to, इसका मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, एंड f of a also exists and all the three must be equal। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन को कंटिन्यूअस एट x is equal to a होने के लिए लिमिट x tends to a, मतलब f is continuous at x is equal to a कब होगा, ये कंडीशंस हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर f टू बी, तो कंटिन्यूअस कब होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फॉर f टू बी, फॉर f to be continuous at x is equal to a, following all conditions must be satisfied together, must be satisfied। It's obvious, for f to be continuous at x is equal to a, following all conditions must be satisfied। फर्स्ट क्या होना चाहिए, आप देखिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और f of a एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब for x tends to a, x not equal to a, fx must be defined। फिर दूसरा क्या, at x is equal to a, at x is equal to a, f of a must exist। At x is equal to a, at x is equal to a, just 1 minute।
ओके फाइन। वो कंटीन्यूअस कब होगा? जब at x is equal to a f of x must be defined at x is equal to a f of x must exist। तीसरा कि limit x tends to a f of x must exist, limit x tends to a f of x must exist। okay, what I will write, f of x must be defined at x is equal to a f of x must be defined। मतलब पहले तो for x equal for x not equal to a, for x tends to a, जब x not equal to, just wait, दोनों चीजें लिख देता हूँ, तीन कंडीशंस में फिक्स करेंगे, अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है। f is continuous at x is equal to a का फर्स्ट कंडीशन for x tends to a, मतलब x not equal to a and at x equal to a, fx must be defined, fx must be defined। फिर for x tends to a, x not equal to a क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? limit x tends to a, fx must exist for x tends to a। okay, that is understood। फिर at x is equal to a क्या मिलना चाहिए? f of a must exist। okay, और आप लिखो x tends to a at x is equal to a, और ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। और चौथा लिमिट x tends to a, fx must be equal to f of a। ये चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x is equal to b। ओके, ये थोड़ा कंटिन्यूटी वाला पोर्शन मैं अभी जो लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आया एक्सीलेंट। If you have not understood, don't take tension, I will repeat it again and explain to you again in the most perfect way, so don't worry। दूसरा, अब अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो उसको हम डिसकंटीन्यूअस बोलेंगे। if f is not continuous, discontinuous function मतलब क्या? if f is not continuous, if f is not continuous at x is equal to a, then we say f is discontinuous, then we say f is discontinuous at x is equal to a। अब f discontinuous कब हो जाएगा? अब ये आपको याद होना चाहिए, कंटिन्यूटी एट x is equal to a, उसमें क्या होता है? लिमिट x tends to a, fx। अगर ये आपको याद है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी एट x is equal to a। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं कि f is discontinuous, f is discontinuous at x is equal to a, और f is not continuous। discontinuous को not continuous बोलते हैं, is not continuous at x is equal to a if any one of following things arise। मतलब कोई भी एक चीज होगी, क्या होना चाहिए? अब जरा देखो, उसके लिए सबसे पहले क्या होना है? ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और f of a भी एग्जिस्ट करना चाहिए। उसका मतलब सबसे पहले अगर मुझे वो लिमिट ही नहीं मिलेगी, मतलब पहली कंडीशन फॉर x tends to a, x not equal to a, fx is not defined। अगर fx डिफाइंड ही नहीं, अगर fx डिफाइंड ही नहीं है अराउंड a, तो लिमिट मिलेगी नहीं, लिमिट नहीं मिलेगी तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड केस, at x is equal to a, fx must be defined, is not defined, fx is not defined at x is equal to a, fx is not defined। अगर at x is equal to a, fx is not defined तो f of a भी नहीं मिलेगा, f of a नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूटी at x is equal to a नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसी कंडीशन ओके, व्हाट आर यू? थर्ड केस में क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, तो सारे केस आ जाने चाहिए, वो आपको पता है। थर्ड केस में क्या? लिमिट x टेंड्स टू a, fx डज नॉट एग्जिस्ट।
ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं है। और एफ ऑफ ए इज नॉट, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ ए ही अगर नहीं मिलेगा, एफ ऑफ ए ही अगर नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं है। और दूसरा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेगा, पर दोनों इक्वल नहीं होंगे। कि लिमिट x tends to a fx exists, f of a exists but both are not, तो भी वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो दिस कंटीन्यूअस x इक्वल टू आपको समझ गया है। 10 मिनट एक छोटा टॉपिक मुझे करना चाहिए कि नहीं, आई विल जस्ट सी। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है वो हम अभी 5 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। ओके, सी f is, मैंने क्या लिखा, f is continuous at x is equal to a, उसका डेफिनेशन क्या है? नॉट कंटिन्यूअस में क्या होता है, लिमिट x tends to f(x) is not equal to a होगा, तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, f is continuous at x is equal to a, डबल इंप्लीकेशन, उसका मतलब लिमिट x tends to a, लिमिट x tends to a, fx क्या आएगा, f of a। तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे f कैसा फंक्शन है, f कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो व्हाट आई कैन से कि लिमिट ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, f कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन f का लिमिट कैसे मिलता है, फंक्शन में, फंक्शन f में x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर वो एग्जिस्ट करता है या उसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। सो व्हाट आई कैन राइट इज दैट इज लिमिट ऑफ कंटीन्यूअस, यहाँ पे f कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो लिमिट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, लिमिट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, लिमिट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन f can be obtained by putting or substituting, by substituting x is equal to a, by substituting x is equal to a in fx provided f of a exists at x is equal to a, provided the denominator is not equal to 0, ऐसा लिखो, provided fx is defined, provided fx is defined at x is equal to a, provided fx is defined at x is equal to a, मैं क्या लूँगा, limit of continuous function f can be obtained by substituting x equal to a in f of x, provided हमारे केस में, हमारे जितने भी केसेस हैं सम्स के, उसमें डिनोमिनेटर ऑफ fx 0 हो जाएगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, प्रोवाइडेड f of x is defined at x is equal to, provided f of x is defined at x is equal to a, that is denominator of fx, denominator of fx is not 0 and x is equal to a, सिर्फ ये हमारा कंडीशन। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शंस कंटीन्यूअस हैं। पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ये सब हमने किया हुआ है चैप्टर में। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस, वो मैं आपको बताऊंगा उसके वर्किंग रूल्स के साथ। लॉगरिथमिक फंक्शंस, algebraic functions, algebraic functions are continuous on their domains, are continuous on their domains। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये इतना आपने डिटेल में लिख दिया, हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं 3 या 4 अभी सिंपल क्वेश्चंस बता रहा हूं, लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देता हूं तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन है L is equal to limit x tends to 3 x raised to 4, अब x raised to 4 क्या है, x raised to 4 क्या है, x raised to 4 अगर पूछा है तो x raised to 4 क्या है, कैसे इट्स अलजेब्रिक फंक्शन क्योंकि उसमें वेरिएबल x है, तो क्या करने का, अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं,
कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा? मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू इन द फंक्शन, तो x इज टू 4 क्या है? पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो। सो एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो इसका लिमिट कैसे मिलेगा? x की जगह पे 3 रख दो, 3 रेज़ टू 4 कितना आएगा आंसर? 18 हो गया। हमको सम्स कैसे करना है? मतलब ये सब नहीं आने वाला है, सम्स के दौरान ऐसा आएगा। मतलब हम बाजू में क्या लिखेंगे? रैशनल फंक्शंस आर, इसमें बाजू में क्या लिखूंगा मैं? Okay, what I will write over here? Polynomial functions are continuous. Suppose question है L is limit x tends to 1 और यहाँ पे है x plus 2 upon x plus 3. Okay, what is this? Polynomial function upon polynomial. Polynomial upon polynomial मतलब वो rational function है. Polynomial upon polynomial. x की जगह पे 1 रख के देखो डिनोमिनेटर में क्या मिलता है? 1 plus 3 4, तो नॉन जीरो नंबर है। तो रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस ये रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इस कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा? इस फंक्शन में x की जगह पे 1 रख दो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो डायरेक्टली लिख दो 1 plus 2 upon 1 plus 3. और हां यहां पे आप देख सकते हो because polynomial functions are continuous. Polynomial functions, okay, I will write polynomial मतलब poly functions are called conti, ऐसा लिखते हैं continuous short form. ओके, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? because rational functions are क्या है यहां पे? continuous. तो 1 plus 2 क्या होता है? 1 plus 2 3 upon 1 plus 3 4 हो गया। फिर अगर कोई क्वेश्चन है और l is हमेशा वेरिएबल x नहीं होता, सपोज थीटा टेंड्स टू 0 तो 1 प्लस cos थीटा, वेरिएबल थीटा है और 1 प्लस cos थीटा मतलब ट्रिगो फंक्शन हो गया। तो ट्रिगो फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो थीटा की जगह पे 0 लिख दो, सो 1 प्लस cos 0 और cos 0 क्या होता है? 1, सो 1 प्लस 1 2। अगर आपको ये सब वैल्यूज नहीं आती तो फिर पता नहीं क्या होगा, बिकॉज़ क्या लिखूंगा मैं? ट्रिगो फंक्शंस, cos is continuous, ट्रिगो फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। ये हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी। हो सकता है ये सारी चीजें मैं प्रूव करके भी दूं आपको, पर अभी के लिए आपको ऐसे याद रखना है। तो दिस इज क्लियर। फिर अगर आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शंस आपने किए हैं, log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a raised to x, ओके, तो ये हो गया। सपोज l is limit x tends to 1 log x to the base e, ओके, वेरिएबल कौन है? x, वेरिएबल कौन है? x, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस। x की जगह लिख दो log 1 to the base e, log 1 क्या होता है? 0, ऐसा लिख दो, because log functions are continuous, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। रीजन ये मेंशन करना है, जब हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स मतलब गुजरात बोर्ड में 2 3 5 और सीबीएसई में 2 4 6 मार्क्स क्वेश्चन आए, ये नहीं आएगा 2 मार्क्स के लिए। सपोज लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड्स टू 2 a raised to y, वेरिएबल हमेशा x नहीं होता है, वहां पे थीटा लिया, यहां पे वेरिएबल y है, तो a की जगह पे निकाल सकता हूं a raised to y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। a की जगह पे y वेरिएबल है, तो y किससे अप्रोच कर रहा है? 2, तो y की जगह पे 2 लिख दो, क्या आएगा आंसर? बिकॉज़ सिंपल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, ठीक है। और लास्ट में अगर लेट मी सी इफ आई कैन सॉल्व, ओके, L is limit x tends to 0 a raised to x, तो x का वेरिएबल a raised to 0 anything raised to 0 is 1, और हाँ तो ये हो गया। अगर फिर है लास्ट 2 थिंग्स, लिमिट x tends to 0 sin y, यहाँ पे x क्या है? x is the variable, तो x ही वेरिएबल है, तो बाकी के सारे लेटर क्या होंगे? कांस्टेंट, तो y भी कांस्टेंट, तो अगर y कांस्टेंट तो sin y भी कांस्टेंट, तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin y क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin y क्या आएगा? x is a variable, y is constant, sin y is constant, so limit of constant is
constant. So sin 1 because y is constant. Y is constant. रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. That part is clear to you. Clear. Because sin y is constant as y is constant. As y is constant. X is variable, that is understood. और अगर क्वेश्चन में है L is limit theta tends to 0, theta या x tends to 0, theta tends to 0, tan 2 रेडियन है, tan 2, तो theta is a variable, theta is the variable, theta is a variable, तो tan 2 is constant, तो इसमें theta का कुछ भी नहीं है, so tan 2 is constant, तो limit of constant क्या होता है? Limit of constant function is constant, so tan 2, और आप यहाँ पर लिखते हो because limit of constant is constant, ये रीजन भी लिख सकते हो. ये लिखने के बजाय आप ऐसा लिख सकते हो because limit of constant is constant, limit of a constant is constant. कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट नहीं, वो वाला होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, वो बाद में सीखेंगे. So I believe इतना आपको समझ में आ गया. और लास्ट सपोज एक सिंपल क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. व्हाट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1? वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन था कंटीन्यूअस. तो क्या कर सकते हैं फंक्शन में x की आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसका डिनोमिनेटर x ये फंक्शन डिफाइंड है जब मैं x की जगह 1 रखता हूं. सीधा इसका आंसर है 1 स्क्वायर x की जगह पे 1 रख देंगे 1 प्लस 1. बाद में क्या करेंगे बिकॉज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. तो आप देखो सम्स की थ्योरी बहुत इजी है. सम आराम से कर सकते हैं. और अगर थ्योरी अच्छी तरीके से नहीं आती है तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं पॉलिंग फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. वो 2-3 बार जो मैंने लिखा है तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो. जस्ट कमेंट लेट मी सी इफ आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस और शुड आई एंड. ओके आई विल एंड हियर ओनली. आई होप थोड़ा ये एक ही टॉपिक मतलब ज्यादा मैंने नहीं सिखाया है आपको, पर ये आप सारी चीजें अच्छी तरीके से सीख लोगे और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. और आपको समझ में आ गया कि सम्स के दौरान वो जो बड़े-बड़े रूल्स है उसका एप्लीकेशन उतना टफ नहीं है. सो प्लीज स्टडी, यू ऑल मस्ट स्टडी द वीडियो लेक्चर्स ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. Finish them on daily basis. Don't waste your time. Take care. Work hard, and I will end over here.